चलो, yesterday we started, नहीं, the day before we started chapter financial statement, analysis of financial statement, right? चलो, તમને બધાને ફોર્મેટ યાદ છે? क्या था फॉर्मेट? चलो बताओ. सबसे पहले we start with the income. Income is of two types: sales revenue and other income. In expenses, first we have cost of new net purchase, change in stock, employee benefit expense, other expenses, depreciation, amortization, and other expenses. Total B means total expenses. A minus B, profit before tax, less tax, we will get profit after tax. Yes or no? Right? That was the format. And today we are going to prepare the financial statement of P&L account. You remember what is financial statement? A statement, financial statement is those which shows the financial results of a business unit. Then what is financial analysis? An analysis of financial statement is known as financial analysis. Now three type of analysis are there. First, on the basis of stakeholders, external and internal, horizontal and vertical, on the basis of duration, long term and short term. Yes or no? Right? Chalo, so now we'll move forward to the exercise. We'll prepare the comparative statement. So in textbook, get to the page number 203. Page number 203, sum number 5. The average profit and loss statement ending on 31st March 16 and 17 of Shruti Company Limited are given as follows. Prepare a comparative statement of profit and loss. Tell me, what is the another name of income expense statement? P&L statement, right? To know the financial position, which statement we prepare? Balance sheet. And to know the cash inflow and outflow, which statement we prepare? Cash flow statement. Yes or no? Now see what we have in the information. We have sales revenue, we have other income. Yes or no? Then we have cost of goods consumed, financial cost, depreciation, other expense, and the rate of tax is only 30%. Ready? So first we will prepare the entire statement. हमें सबसे पहले ना पूरा स्टेटमेंट छाप देना है, जैसे हमने कल सीखा था. कल जैसे हमने स्टेटमेंट बनाना सीखा था, ये स्टेटमेंट आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में भी काम आएगा. और इसमें हम जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं कर सकते, जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना है. So now we are preparing comparative P&L statement. We are given the information of two different years, 31st March 16, 17. We will denote 16 as A, 17 as B. Now we'll do A minus B and denote it as C. Here we'll find the difference. यहाँ पे हम दोनों का difference ढूंढेंगे और उस difference को हम percentage में show करेंगे, कितना percent change आया, right? हाँ यही. चलिए, first we'll start with the very first income, sales revenue, other income, total A. Now in expenses we have multiple expenses, cost of material या फिर goods consumed, दोनों लिख सकते हो. Cost of, now tell me which material we consider here? Which material we consider here? Raw material. Which material? And then we'll show net purchase. Net purchase मतलब क्या होता है? Purchase minus return, ऐसे लिख सकते हो. Then we have change in stock. Now what does it mean? Change in stock means opening stock minus closing stock. Next expense we have is employee benefit expense. इसमें क्या आता है? The salary we pay to the employees, bonus, commission, जो खर्चा आप employees के पीछे करते हो वो सब इसमें आएगा. Next we have is financial cost. Now tell me क्या आता है financial cost में? Interest paid on the funds we borrowed from the market, right? Loan लोगे तो interest देना पड़ेगा. Then we have depreciation and amortization. Tell me what is the difference between the two? Depreciation on the tangible fixed assets, and which asset gets amortized, right? Return of intangible fixed asset like goodwill, patent and all. Next we have is other expense. Here we will get total B, A minus B. It is known as profit before tax.
Now we'll do the deduction for tax and finally we will get profit after tax. In other words, it is known as net profit. Yes or no? तो ये फॉर्मेट आपको ऐसे ही लिख लेना है जैसे आपके सामने है, फिर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे। काफी बार ऐसा होगा जैसे कि ये सम आप देख रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट नाम की कोई चीज ही नहीं है, दिख रही है आपको? तो ऐसा नहीं है कि हम उसको फॉर्मेट में लिखेंगे नहीं, फॉर्मेट तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। रेडी? नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग एन अमाउंट इन ईयर 16 एंड 17। दोनों में अमाउंट प्लेस करना शुरू करते हैं। चलो 16 का सेल्स रेवेन्यू दिया है 19 लाख। पहले ना पूरा अमाउंट, सारा अमाउंट लिख लेंगे। 19,50,000। अदर इनकम वी आर गिवन 1 लाख। इट विल सेव योर टाइम। अगर आप ऐसे करेंगे ना आपका टाइम बचेगा, वरना एक एक के लिए वापस कैसे उठाना पड़ेगा, डिफरेंस ढूंढो, परसेंटेज वापस ये लिखो ये लिखो। नहीं, डोंट डू दैट। फर्स्ट प्रिपेयर द एंटायर स्टेटमेंट। वंस यू आर डन विद दैट देन फाइनली कैसे उठा लो, डिफरेंस परसेंटेज दोनों साथ में फाइंड कर लो। तो पहले पूरा स्टेटमेंट हम लिख देंगे। 25,35,000. Then we have 2,85,000. In cost of material consumed, we have 950 and 11,40,000. This is sum number 5 at page number 203. Now see, there is no information about purchase, no information about opening and closing stock. Opening closing stock भी नहीं दिया हुआ है. Financial cost we are given is 150 and 90. एम्प्लॉय बेनिफिट भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे 150 and 90. Ready? Then we are given information about depreciation, that is 60. And other expenses are 340 and 425. चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अमाउंट यहां से वहां नहीं हुआ है ना। सी वी आर डन विद द इंफॉर्मेशन। अब टैक्स का रेट बाकी है, वो अभी नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलने के बाद। चलिए इतना हो गया बच्चों। रेडी? अब इन दोनों का टोटल लगा दीजिए। 1950 प्लस 190 दैट इज 21,40,000। एम आई राइट? अब ये 25,35,000 प्लस 285 कितना होगा? 27 लाख, नहीं 28 लाख, 28,20,000। यस और नो? अब ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल लगा लीजिए। 950 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 340, 15 lakh. Yes or no? Now let's total this. 17,15,000 ऐसा आ रहा है? टोटल ऑफ 2017, एक्सपेंसेस ऑफ टोटल ऑफ 17। यस और नो? अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस। 21,40,000 माइनस 15 लाख, तो कितना बचेगा? 6,40,000 बचेगा कि नहीं? ये देखिए, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये 28,20,000 में से 17,15 निकाल दो, 11,05,000। 11,05,000 इतना समझ आया आपको? यस और नो? पहले पूरा फॉर्मेट ही बना लो तो दिक्कत ही नहीं। फिर फाइनली चलिए अब इसमें आपने 30% टैक्स दे देना है गवर्नमेंट को। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स गिवन इन द क्वेश्चन? देखिए, इनकम टैक्स रेट इज, अब ये यहाँ पे 30% है, अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। अब ये जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ना, उसका 30% टैक्स लगा दो। 1,92,000, 192 और नॉट 30%, 3,05,000। चलिए ये टैक्स लगा दिया यहाँ पे। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 640 माइनस 192, सो वी विल गेट आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस माइनस इसका 30% लगाना है, 4,48,000, 1105। रेडी? ये पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है, ए माइनस बी, और परसेंटेज निकालना है। रेडी? चलिए 23,35,000 लेस 19,50,000,
गुड 185 नहीं नॉट 185 685 यस और नो 585 ओके 5,85,000 285 minus 190 95,000 यस और नो अब 28,20,000 में से 21,40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 680 अब आप इन दोनों का वर्टिकल टोटल भी करेंगे ना तो वो भी 680 ही आएगा 585 प्लस 95 तो वो भी कितना होगा 680 ही होगा दोनों तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो अब यहाँ पे 1140 माइनस 950 लगाएंगे 1,90,000 हाँ नहीं माइनस में नहीं आएगा ना दिस माइनस दिस समझ आ रहा है अभी ये माइनस में आएगा 90 माइनस 150 कितना आएगा 60 अब ये क्या हो गया खर्चा कम हो गया देखिए 16 में कितना खर्चा हो रहा था 150 हो रहा था फिर 17 में कितना हो गया 90 तो कम हो गया खर्चा कितना कम हुआ 60,000 जहां जहां चेक करिए जहां पे 17 में इंक्रीज हो रहा है ना हम बी माइनस ए लगाते हैं ए माइनस बी नहीं लगाते समझ आ रहा है तो यहाँ पे आपका खर्चा देखिए कम हो गया 150 में से 90 बाकी सब में देखिए इनकम बढ़ा है ये खर्चा बढ़ा है ये तो न्यूट्रल है ना बढ़ा ना डिक्रीज हुआ कुछ नहीं हुआ अच्छा हाँ यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे कल भी ऐसे लिख लिया था 4,25,000 माइनस 3,40,000 85,000 रेडी चलिए अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या इनका टोटल लगाएंगे टोटल कैसे लगाएंगे 190 प्लस 85 लेस 60 इंक्रीज 2 लाख इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया ना यहाँ फिर आप देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस तो वो भी इतना ही आएगा 250 190 प्लस 85 माइनस 60 समझ आ रहा है क्या हो रहा है यस और नो चलिए नाउ लेट्स डू दिस 680 में से 250 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या 11,05,000 लेस 6,40,000 4 लाख अब इससे भी 30% टैक्स दे दो या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो बात सेम ही होगा 139 39 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो बात सेम ही होगा 773,500 लेस 4,48,000 1,86,500 यस और नो ये नहीं आ रहा है ऐसा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 3,25,500 समझ आया अब हमें परसेंटेज ढूंढना है परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं हम C/A मल्टीप्लाई 100 चलिए परसेंटेज निकालना है 585 डिवाइड बाई 1950 इंटू 100 30% 50% अब ये 80 नहीं आएगा तो ऐसे सवाल नहीं करिएगा 680 डिवाइड दिस मल्टीप्लाई 100 एक मिनट दिस में अंदर आउट चलिए डिवाइड करिए 31.78 चलिए 190 डिवाइड बाई 950 60 डिवाइड बाई 150 ये कम हुआ है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 40 ये कम हो गया 150 लेस 40% राइट अब इसमें तो नो चेंज है तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं 85 डिवाइड बाई 340 मल्टीप्लाई 100 this divide by this 525 चलिए 2,15,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 14.33 चलिए 465 डिवाइड बाई 640 इंटू 100 नहीं
66 और 67 ओके, ये भी सेम आएगा 72.66 और ये भी वही आएगा। समझ आया? आप चेक कर लो, वही आएगा, रेशियो सेम है इसीलिए। चलिए नोट डाउन।